Beyond the bustling cities and vibrant towns, our country boasts a treasure trove of natural wonders, a plethora of mountains and peaks that grace its every state. Our mountains are as diverse as people and cultures. Each state boasts its unique mountain landscape, each with its own stories, myths and legends. It is astonishing that despite the incredible diversity of our landscapes, many of us remain unaware of the highest peaks in our own states. We decided to act as the bridge to connect our people with our motherland and the overlooked geographies using the most powerful symbol that holds a deep and abiding love, a sentiment that has stirred the hearts of individuals and nations throughout history. Our Tiranga. With the vision to hoist the Indian national flag on the zenith of the summits of all the 28 Indian states, Har Shikhar Tiranga was conceptualized. Brainchild of ace mountaineer, 3 times Everester, Colonel Ranveer Singh Jamwal's name is synonymous with the awe-inspiring summits of the world's tallest mountains. Born with a relentless passion for conquering peaks and pushing the boundaries of human endurance, he has not only etched his name in the annals of mountaineering history, but has also become an inspiration to countless aspiring climbers and adventurers around the globe. Har Shikhar Tiranga, एक मुहिम मातृभूमि के लिए, is not just a campaign. It's a testament to the indomitable spirit of India and the unwavering commitment of a team of dedicated individuals who embarked on an extraordinary mission. भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! जब हर घर तिरंगा चल रहा था तो तब ये मन में आया कि एज ए माउंटेनियर हम क्या अलग करें, और उस वक्त ये था कि कुछ ऐसा किया जाए जो बिल्कुल अलग हो एज माउंटेनियर्स, जो हमें भी अच्छा लगे। और सातों महाद्वीपों की हाईएस्ट चोटी में चढ़ चुका हूँ और मौका अच्छा था। और हर शिखर तिरंगा जब कंसेप्ट के बारे में सोचा, फिर ये भी आया दिमाग में कि आसान नहीं है करना। 28 स्टेट्स किसी ने पहले नहीं किया है, क्या हम इसको कर सकते हैं? क्या हम इसको करने के काबिल हैं? 20 mountaineers from the National Institute of Mountaineering and Adventure Sports, led by Colonel Jamwal, set out for the mission, aiming to ensure that every household in our country knows not only about its own state, but also about the magnificent mountains that grace its landscape. The mission started with summiting the remote heights of Gorichain in Arunachal Pradesh, home to Nimas, followed by peaks of Saramati, Manipur, Assam, Mizoram, Tripura, Meghalaya that are incredibly unique in their own right. Each of these unique peaks are waiting to be explored by the mountaineering community. After the successful completion of testing phase, the team gained immense confidence in the idea and decided to go pan-India. अब हमें कॉन्फिडेंस आ चुका था कि नॉर्थ ईस्ट कंप्लीट हो गया है, अब हम पैन इंडिया जा सकते हैं। एक प्रॉपर स्टेटमेंट ऑफ केस बनाया, इंडिया के मैप के अंदर पूरे डॉट्स, हाईएस्ट माउंटेन और वीक पॉइंट्स को कनेक्ट किया, पूरी प्लानिंग के साथ कि हम लोग कौन सा रास्ता लेंगे, कहाँ पे हम रुकेंगे, किन के साथ हम कोऑर्डिनेट करेंगे, उन चीज़ों को हमने प्लान किया। हालांकि बाद में जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते थे काफ़ी चीज़ें चेंज हुई, लेकिन वो एक प्लान, पहली जो हमारी प्लानिंग थी वो बहुत काम आई हमारी ओवरऑल जब हम कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं उसमें। The expedition started with researching on the peaks of every state. Data was dug into, IMF was consulted, and verified information was brought up front to plan the route chart for the campaign. After the flag off by Chief Minister of Arunachal Pradesh, Shri Pema Khandu, and other dignitaries at Nimas, the core team headed towards Himachal Pradesh to summit the verified peak, Rio Pergil.
The Phase 2 journey began in the pristine Himalayan peaks of Himachal Pradesh, where the air is crisp with adventure and the snow-capped summits seem to touch the heaven. The team was successful in summiting Rio after 18 hours. From here, the team ventured into the breathtaking landscapes of Uttarakhand, scaling the peaks that have been the stuff of legends for generations. मुझे हर्षित तिरंगा टीम के साथ माउंट कामेट में एज ए गाइड जुड़ने का मौका मिला और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इस टीम के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं माउंट कामेट के ऊपर एज ए गाइड और एज ए फोटोग्राफर इसमें काम करने के लिए आया था। क्लाइंबिंग तो चलो ठीक है, क्लाइंबिंग के साथ साथ मेन फोटोग्राफी होती है और फोटोग्राफी में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें कैमरे की जो बैटरी है उसे समिट तक संभाल के रखना है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हमें अब बैटरी को कैसे सेव करना है, क्योंकि हमारे पास चार्जिंग के लिए सिर्फ क्या था, एक सोलर प्लेट थी और उसी से हम जो है फ़ोन को चार्ज करते थे और बैटरी उसी के हिसाब से हम बैटरी को क्या है सेव करते थे। तो मेरे लिए सबसे बड़ी चैलेंज थी कि मुझे बैटरी समिट तक लेके जानी है ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो और फोटो जो है टीम का समिट का ले पाऊँ। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए और क्लाइंबिंग भी मैंने इसके साथ किया। मेरा कामेट में जाना ये दूसरी बार था और उस बार समिट नहीं हो पाया था, इस बार मैंने जो है कामेट को समिट किया। After battling incessant snowfall and extreme windy weather, they summited Kamet in a very slim window of open weather that allowed them to reach the peak. कामेट में भी बहुत लंबा रूट था, बहुत ज़्यादा सामान की भी रिक्वायरमेंट होती है और लोड फेरी के लिए कोई पर्सन नहीं थी, हम ही अपनी टीम ही थी। कंटिन्यू 4 से 5 दिन लोड फेरी करना पड़ा। उसके बावजूद भी टीम 1 जो अपनी टीम थी वो कैंप 2 से वापस आ गई थी, तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फेस करना पड़ा वहाँ पे कामेट में, बेस कैंप में। उसके बाद जब टीम हमारी सबमिट करके आई कामेट से, तो सारे लोग इतने ज़्यादा बीमार हो रखे थे क्योंकि आज मैं नर्सिंग स्टूडेंट था टीम में, तो मुझे देखा कि पूरे बंदों के मुंह में छाले पड़ गए हैं, पूरे अपसेस हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, बॉडी इतनी एडजस्ट हो रही है, तो लोग बोलने की हालत में नहीं है, चलने की हालत में नहीं है लोगों की कंडीशन। तो ये क्यों हुआ कि कंटिन्यूटी हम जो लगातार पिक पे बाई पिक कर रहे थे उसके कारण से ये चीज़ हुआ था। माउंट कामेट करने के बाद जब टीम देहरादून पहुंची तो जैसे ही कोई भी हम मिशन कंप्लीट करने के बाद हम क्लोज होते हैं, जैसे सामने हमें क्लोज करके तो मुझे 3 स्टेटों की रेकी करने का मौका टास्क दिया, हरियाणा, यूपी, पंजाब। जो दोनों राज्य हैं हमारे पंजाब और हिमाचल, ये बॉर्डर जो अपने राज्य डिस्ट्रीब्यूट हुए तो बॉर्डर पिलर है बीच में, आपने कहीं गुमटी है कहीं पिलर है दोनों राज्यों के बीच में। तो नैना देवी जो रेंज है उसके बीच हम पंजाब के हाईएस्ट पॉइंट पे हमें 2 दिन लगे थे उसे ढूंढने के लिए। हमने वहाँ पर लोकल बंदों की सपोर्ट से वहाँ गए और वहाँ पर अपना रेकी करी, जीपीएस शॉट लिए। उसके बाद मैंने अपने लीडर साहब को फ़ोन किया। As they moved forward, they touched the hearts of the people in Punjab and Haryana, sharing stories of the state's cultural richness and its towering heights. जब हमने 2 हफ्ते पहले रैकी टीम भेजी थी जिसमें नेपाल आया था, तो ये पूरा रोड था, गांव तक हमारी 4x4 गाड़ी गई थी और अभी हालत देखो। Their quest took them through every nook and cranny of our diverse nation, from Western Ghats in the south, where emerald green forests meet the azure waters of the Arabian Sea, to the lush landscapes of the east.
The team had to overcome various physical hardships, including trekking through unfamiliar and often rugged terrains and at places with no trail. They carried with them not just the flag, but the spirit of unity and the message that we are one nation, bound together by our love for this land. Mission Har Shikhar Tiranga was not just our mission. This was not just Nima's mission. This was for the people, and obviously we got a lot of love from every corner of the country. हमें गांव में, कस्बे में, मेन सिटीज़ में बहुत प्यार हमें मिला एंड शायद हमने एक सिरे से अगर कहें तो हमें पूरे भारत को जोड़ने का भी काम किया है और तिरंगे के प्रति जो सम्मान, जो प्यार हमें देखने को मिला वो शायद हम शब्दों में शायद मैं बयान कभी नहीं कर पाऊँगा उसको। The southernmost ranges of our nation, with the lush landscapes of Kerala and Tamil Nadu, awaited them. As they journeyed southward, the landscape transformed into the lush hills of the western and eastern Ghats. Peaks like Kerala, Mulyanagiri in Karnataka, and Armakonda in Andhra Pradesh might not reach the heights of their Himalayan counterparts, but they are no less stunning or significant. Gaining permissions to trek through sensitive areas and areas with security concerns like Telangana, Odisha and Chhattisgarh were a daunting bureaucratic task. हमारा मिशन जब स्टार्ट हुआ था वैसे ही हमने हर स्टेट के, हर राज्यों के एडमिनिस्ट्रेटिव को हमने इन्फॉर्म किया था कि हम आपके राज्य में हर शिखर तिरंगा के लिए हम आपके राज्य में आ रहे हैं। जहाँ पर जैसे उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, जो सेंसिटिव और नक्सलिस्ट एरिया है, वहाँ पर हमको सीआरपीएफ और लोकल पुलिस की ज़रूरत पड़ती थी। तो उनके सीआरपीएफ और लोकल पुलिस के साथ लाइजन करना, उनको लेटर इशू करना, साथ में उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना, फिर पीक कंप्लीट करना। Battling blood-sucking leeches while trekking in Goa and traveling for 16 hours daily looked very bleak in comparison when the team, weeks after weeks, days after days, and month after month, started to accomplish each of the summits. मैं वाइट वाटर राफ्टिंग इंस्ट्रक्टर हूँ। इसके अलावा मुझे एक और मिशन के लिए चुना गया, हर शिखर तिरंगा। 18 स्टेट क्लाइंब करने के अलावा मुझे एक अलग से मिशन दिया गया जिसका नाम था मेरी माटी मेरा देश। देश भर में सभी मिट्टी कलेक्ट कर रहे थे, जैसे स्कूलों में, हर जगह में, स्कूलों में शहीदों की मिट्टी, और हमें ये घर प्राप्त हुआ कि हम शिखर की मिट्टी कलेक्ट कर रहे थे। It was overall I would say a very difficult journey because Jongsong की अगर मैं बात करूँ, जैसे रेव पोलग्याल was the second ever recorded summit done by us after 1995, वैसे ही जोंगसोंग भी बहुत पुराना माउंटेन है, पहले डिस्कवर हो चुका है, 30s 40s में क्लाइंब हो चुका है, लेकिन अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात की जाए तो मैक्सिमम 3 बार क्लाइंब हुआ है, 4 बार रिकॉर्डेड क्लाइंब हुआ है उसका, दैट्स इट। जब हम जोंगसोंग पे गए तो जोंगसोंग का जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है वो उसका कैंप 1 और कैंप 2 के बीच, जो कि काफ़ी लूज रॉक और रॉकी फॉल वाला पार्ट है, उस पर रॉक फिक्स करना इतना आसान नहीं था हमारे लिए और बहुत ही चैलेंज था उसमें, क्योंकि जब हमारा आगे वाला बंदा जा रहा था तो उसके पाँव से रॉक फॉल हो रहा था, तो पीछे वाले के ऊपर रॉक गिरने का बहुत खतरा था। समिट के दिन काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल भी था और विंडी था, मौसम बिल्कुल, टेम्परेचर बहुत ही माइनस हो चुका था। और जब हम समिट पॉल पे पहुँचे तो समिट पॉल से उसकी जो हाइट आ रही थी लगभग 7200, तो 200 मीटर हमें और क्लाइंब करना था। उन 200 मीटर क्लाइंब करने में ही हमें कम से कम 6 से 7 घंटे लग गए और हमारा दिन में जाके 12-1 बजे तक हमारा समिट हो पाया। And the moment
when they stood on the eastern frontiers after completing the mission in the enchanting state of Sikkim. The Har Shikhar Tiranga team, on the cusp of completing their remarkable journey, met with an unfortunate episode of Glacier Lake outburst that caused havoc in the state of Sikkim with an incessant deluge. 4 people here, team of Nimas, and all are okay here. 24. Yeah, okay, bye, take care, thank you. The joy of celebration was soon outlived by the pain of devastation. However, the team didn't waste any time in continuing the mission as a rescue operation. मिशन हर शिखर तिरंगा का मैं भी एक पार्ट हूँ। मैंने 30,000 किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी चलाया। तो इस दौरान जो परेशानी हुई, जैसे हम सुबह 4 बजे चलते थे और रात को 11-12 बजे तक हम गाड़ी चलाते थे, तो नींद पूरा नहीं होता था। जैसे हमको जो शेड्यूल मिलता था कि नेक्स्ट डे नेक्स्ट स्टेट में पहुंचना है, तो वही हिसाब से हम गाड़ी को या किलोमीटर कवर करते थे। जो ये सिक्किम का जो क्लाउड ब्लास्ट हुआ, उसमें जैसे हमको सूचना मिला कि क्लाउड ब्लास्ट हो गया, तो तब मैंने फर्स्ट में मैं यही सोचा कि मैं कैसे अपना गाड़ी को बचाऊं। तो पहले मैंने गाड़ी की तरफ ध्यान दिया, उसके बाद गाड़ी को जाके सुरक्षित जगह में उसको मैंने पार्क किया। उसके बाद आके मेरा अपना जो सामान था, स्लीपिंग बैग वगैरह था, जो भी था, वो मैंने अपना फिर नेक्स्ट में उसको मैं ठीक जगह में लेकर गया। जो पहला मेरा जो काम है, मैंने गाड़ी को सेव करना था, उसको सेव किया। आज भी वो जगह में सेव है। अभी जैसे रोड खुलेगा उसको हम धीरे धीरे लेके आएंगे। Har Shikhar Tiranga has been truly blessed to witness an outpouring of love and unity from people across every state they ventured into. The spirit of the mission resonated with individuals from diverse backgrounds, inspiring them to join hands in this noble endeavor. As the mission continued to gain momentum, the support of celebrities added a star-studded dimension to our cause, emphasizing the power of collective determination and shared purpose. Together, we achieved something remarkable, reminding us that when people come together for a common goal, there's no peak too high to reach and no challenge too great to overcome. I always say this, dreams are cheap, execution is expensive. तो कोई भी सपना जब आप सोचते हो, उसके लिए आपको बहुत मेहनत और बहुत शिद्दत से काम करना पड़ता है अगर आपको सक्सेस पानी है। ये भी वही सपना था जो आसान नहीं था कंप्लीट होना, एंड वी आर लकी दैट वी कुड एबल टू कंप्लीट इट एंड वी कुड मेक एन एपिक जर्नी ऑफ तिरंगा टू द हाईएस्ट माउंटेन ओब्लिक पॉइंट ऑफ ऑल 28 स्टेट्स ऑफ द कंट्री।